All right. Today we are going to see one more new loop, that is for while loop. Just like for loop, another loop is also present, subsidiary loop, which is called as while loop. How to use it? What is the syntax that we will see, and then what difference is there in between for and while? That's also we will see it, and then where to use which one. It's entirely user's choice. We have been provided with two choice. हमारे पास दो choice है कि या तो हम अपने प्रोग्राम को अगर लूप की जरूरत होती है तो वाइल से भी चला सकते हैं और फॉर से भी. लेट अस हैव अ लुक एट अ वेरी सिंपल कांसेप्ट. ये शुरू के चार लाइन देख रहे हैं. लेट अस लुक एट द फर्स्ट फोर लाइन. I have written a small program using a while loop where I am going to print the word C11 for 10 times. तो while loop का logic क्या कहता है? The while loop logic says that still people are entering. The while loop logic says that first thing you have to decide a variable with the initial value. जो loop को चलाने वाला variable है x, y, z, a, b, c, उसको एक starting value दे दो. तो here I have given a value x which will run my x while loop as 1. Now the statement ये क्या बोल रहा है? This loop is going to work as long as the value of x is less than 10. जब तक x की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी तब तक वो चलता रहेगा, और चलता रहेगा और क्या प्रिंट करेगा? इट इज गोइंग टू प्रिंट द वर्ड C11. एक और चीज, इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू टेक केयर. हमें क्या करना है, फिर आगे वाली लाइन पे लिखना पड़ेगा, नाउ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x. सो सी हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क. ये प्रोग्राम कैसे चालू होगा, हाउ इट विल वर्क. लेट अस सी लाइन बाय लाइन. व्हेन द फर्स्ट लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, ये मेरा रफ वर्क है, x की वैल्यू 1 है. नाउ टेल मी व्हाट दिस लाइन इज टेलिंग यू. ये जो मैंने अभी अभी सर्कल बनाया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. X यस. हाँ, समवन वाज सेइंग समथिंग. सर x की वैल्यू मतलब x या तो 10 से कम होना चाहिए या तो उसके इक्वल होना चाहिए. बराबर होना चाहिए, तब तक व्हाइल लूप चलेगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स, 1 is less than equal to 10, so we will get two answer. Either we will get an answer yes or we will get an answer no. तो जब No. तक yes है तब तक नीचे के while loop के अंदर जो भी चीज लिखी है उसे तुम करते रहो. So what we are going to do first time, 1 is less than 10, yes, so it is going to print. एक बार प्रिंट किया, और फिर अब x क्या बन गया, ये जो x is equal to x plus 1, रफ वर्क में देखो, अब मेरा x जो 1 था वो बन गया 2. क्यों? New value of x is getting a new value, x is getting a new value, add 1 to the previous value. तो 1 plus 1 2. फिर ऊपर गया ये लूप, यहां से फिर x while पे गया. 2 is less than 10, again the question is there, so it will get an answer yes or no. So it is yes, so it will again print second time. It will go come down again, नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, 2 बन जाएगा 3, फिर ऊपर जाएगा, 3 is less than 10, yes. तो ये चलते 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 कितनी बार प्रिंट करेगा? इट इज गोइंग टू प्रिंट 10 times the word C11. और जब x बन जाएगा 11, 11 is less than 10, no. तो जैसे ही ये no आया तो कंपाइलर प्रोग्राम्स के मतलब इस while loop से बाहर आ गया. It has come to this point, the asterisk point which I am marking right now. ओके, सो आई हैव रिटन अ while loop also. मैंने यहाँ पे आपको कंपेयर करने के लिए दोनों लूप को बनाया है. क्या कर रहा हूं मैं इस प्रोग्राम में? सिंपल, आई हैव रिटन अ स्मॉल प्रोग्राम विथ while loop. I have written a small program with X loop so that you can compare both the loop together and understand the difference. कोई मुझे difference बता सकता है कि what is the difference in between both? What is the similarity? First thing, similarity बताओ. सर हाँ, सर while loop जो है वो yes कमांड के लिए फॉलो कर रहा है और for loop false कमांड कमांड के लिए. नहीं नहीं बेटा, रॉन्ग रॉन्ग. दोनों ही यस के लिए कर रहे हैं, दोनों ही यस के लिए कर रहे हैं यहाँ पे. अच्छा, पहले और अभी बट अभी डिफरेंस बता. डोंट टेल द डिफरेंस, फर्स्ट टेल मी द सिमिलैरिटी. सर both are in the less range than of 10 print होगा. Okay, both are going to execute a certain step that many time that we have mentioned. जैसे यहाँ पे C11 10 times print होगा और C12 भी 10 times print होगा. So this is the similarity कि whether it is while loop or whether it is for loop, it is going to print n number of times whatever you will specify that particular statement. Now let us talk about the difference. अब इनमें अंतर क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स अंतर तो सिंटेक्स का ही है. सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इज. सिंटेक्स का मतलब है वे ऑफ राइटिंग. यहाँ पे वाइल ये फॉर लूप के अंदर
हमें कहीं भी ये नहीं बताना पड़ता है कि हर बार कितना इंक्रीज करो, अगर कुछ भी ना बताए तो बाय डिफॉल्ट वो 1 कर लेता है। यस, फॉर y इन रेंज 10, इसका मतलब है 10 बार चलाओ, 10 बार किसको चलाओ, C12 को। जबकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट का रहना जरूरी है, देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट इन व्हाइल लूप। ये अगर नहीं दोगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये इनफाइनाइट लूप बना देगा, कभी बाहर ही नहीं निकलेगा और आपका प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। व्हेन यू विल रन इट, इट विल नॉट शो एनी आउटपुट। क्यों? क्योंकि वो तो आउटपुट बनाया पड़ा है अभी तक, C11 को प्रिंट करता रहेगा जब तक आपके मेमोरी में जगह है, और वो ऐसा लगेगा कि द प्रोग्राम, द सिस्टम इज हैंग, रुक गया है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सो it is important to always mention this increment operator in while loop। जबकि x में अगर ना भी करे यहाँ पे, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट हमेशा ले लेता है। कहने का मतलब, अगर मैं इसे कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, x वाले को डायरेक्ट 10 लिखा तो ये 10 टाइम्स रन होगा। एक बार रन करके देख लेते हैं कि वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट। C11 इज प्रिंटिंग 10 टाइम्स एंड C12 इज प्रिंटिंग 10 टाइम्स और नॉट। कहीं सिस्टम हैंग तो नहीं हो जा रहा है? लेट्स सी इट, आउटपुट देखते हैं। नाउ सी दैट, ये रहा मेरा C11, पहले प्रिंट हुआ while लूप की वजह से। द while लूप इज प्रिंटिंग C11 10 टाइम्स। ये किसने किया? ये, this has been done by while loop, whereas C12 is also printed 10 times, this is done by for loop। और दोनों ही 10-10 बार चले, ये भी 10 टाइम चला, ये भी 10 टाइम्स चला। नाउ लेट्स लुक एट द कोडिंग। फिर से एक बार कोडिंग पे आ जाते हैं। So important thing in for while loop is that you have to mention the step of increment inside the loop। step of increment मतलब कितना बढ़ना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें while लूप में रहता ही रहता है। जबकि स्टेप ऑफ इंक्रीमेंट अगर ना भी दे हम यहाँ, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ले लेता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द सिंटेक्स। साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है, while लूप चालू करने के लिए एक वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देनी पड़ रही है। इनिशियल वैल्यू वी हैव टू प्रोवाइड, स्टार्टिंग वैल्यू जिसे कहते हैं, व्हाट इज माय स्टार्टिंग वैल्यू। जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू ना भी दे, तो y बाय डिफॉल्ट 10 बार चल के C12 को प्रिंट कर दे रहा है। So this is the two major difference in between for loop and while loop। दोनों एक ही काम करते हैं, स्टेटमेंट को पर्टिकुलर टाइम एग्जीक्यूट करते जितना भी आप चाहते हैं। So now how the questions can come in this। एग्जाम में मैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं? मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे आई विल गिव यू दिस कोड ऑफ फॉर लूप, मैं ये फॉर वाई ये दे दूंगा, और आई विल आस्क यू कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोग्राम इनटू व्हाइल लूप। ये जो फॉर वाई इन रेंज 10 प्रिंट C12 दिख रहा है, इसको आप कन्वर्ट करिए व्हाइल लूप में। सो व्हाट वुड बी योर आंसर? योर आंसर वुड बी समथिंग लाइक दिस, लेट मी राइट इट। इसका आंसर होगा कुछ इस तरह, हम ऐसा लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 1, फिर लिखेंगे while y इज लेस देन इक्वल टू 10 कोलोन, इसके अंदर लिखेंगे, जस्ट अ मोमेंट, इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट, क्या प्रिंट करना है? C12, और साथ ही साथ लिखेंगे y इज इक्वल टू y प्लस 1। सो दिस वुड बी द एग्जैक्ट कन्वर्जन ऑफ माय गिवन कोडिंग ऑफ फॉर लूप। सर तो इसमें ये हाँ, जरूरी नहीं है ना कि हम y की वैल्यू 1 ही लें, मतलब 10 से कम कोई भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हो। एम ये होना चाहिए कि आपका 10 बार ये प्रिंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 ले लो और y इज लेस देन इक्वल टू 20 लिख दो, तो भी सही है, नो प्रॉब्लम इन दैट वन। पर प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो सकती है? जैसे एक कन्वर्जन, एक और क्वेश्चन पूछूं इसका, ये पहले बताओ कि पहले ये कन्वर्जन सबको समझ में आया कि नहीं, जहां पे मैंने y इज इक्वल यस टू सर। 1 और 10 लिखा था। ठीक, यहाँ ध्यान यस देने सर। वाली बात, यहाँ पे y यूज हुआ है तो आपको भी अपने प्रोग्राम में y ही यूज करना है, आप उसे zx नहीं बना सकते, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग to convert the code into while loop। Exactly, you have to convert, you have to use the same variable, you cannot take extra variable until unless it is required। तो हमें exactly, और ये C12 प्रिंट करने बोला है तो हम C12 ही प्रिंट करेंगे, ऐसा नहीं कि हम अपना नाम प्रिंट कर दे। नो, exact conversion is required। ओके, चलो एक क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट फॉर मी।
मैं उस प्रोग्राम को यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट में सीट. You have to convert this into while loop. अरे सॉरी जगह छूट गई. ओहो, पीपल आर स्टिल एंटरिंग. क्या बात है, आज तो स्ट्रेंथ बड़ी जोरदार लग रही है. आई कैन सी एवरीवन इज प्रेजेंट हियर. पहली बार ऐसा हुआ है कि आई एम गेटिंग अ फुल अटेंडेंस, अदरवाइज समवन और एल्स इज एब्सेंट. ओके, नाउ लेट्स सी. फॉर num in range 2, 8, 2, print num. Now convert this program into while loop. The question is, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सेगमेंट को, बस इतना सा, ये जो which I am making a box, you have to convert it into while loop. Convert it into while loop. कितना वेटेज रहता है इस तरह के क्वेश्चन के? मैक्सिमम 2 मार्क्स. इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन. This is a class 12th board question which I am asking of simple Python fundamental, the syllabus which you are going to carry forward in 12th. Okay, everyone keep your pen and notebook ready. Write it, complete it. Just give me your answers ki whether you have completed or not. Only that much would be enough. जिसका complete होगा वो बोलता जाएगा yes. Done. Okay, 1 done. Sir, done. 2 done. Sir, done. 3 done. I'm going to wait for Done. 7 dones. 4 dones. Okay. Try it. Give your try. Try हर किसी को करना चाहिए बेटा. ये नहीं करना चाहिए कि एकदम बैठ जाओ. It will be wrong. पर wrong कहाँ हो रहा है वो चीज पता चलेगा when I'll give you the answer. Otherwise क्या होगा? खाली पेज में क्या सोचोगे कि हाँ यार मैंने तो यही सोचा था. And you will be in a wrong state of mind. So 4 done. Any other done? Done. 5 done. Done. 6 done. Sir, done. 7, 8, 9 done. Okay. done. चलो stop the Sir, done done. now. Okay, very good. 3 बार कर लिया मतलब. हाँ चलो. Let's see. Now I'm going to write the answer and you have to verify it on from your notebook how much you have achieved it. चलो num यहाँ है. So how the answer would be now? The answer. First thing I will declare a variable num with the starting value 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? num का start value क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. ठीक है? 2. Next thing. Next thing that I'll do, I'll write a while statement. While num is less than 8, not equal to. क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? ये कहाँ खत्म होना चाहिए? 8 में. तो मेरा भी ये 8 में ही होना चाहिए. एंड रिमेंबर, फॉर लूप की खासियत क्या रहती है? जो लास्ट रेंज रहता है वो इंक्लूड नहीं रहता है. डू यू रिमेंबर? 2, Yes, sir. 4, 6 तक चलेगा. ये 3 बार ये लूप चलने वाला है फॉर लूप. 2, 4, 6 के लिए 8 इंक्लूड नहीं होता है. The upper range is never included, so we will not put a equal to sign here. यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे while num is less than 8. आगे क्या करेंगे? Let me first rub it little bit. ये जगह बना दूं. Okay. Now what I'll do? Just a moment. Let me complete it. No disturbance in between. Print Num. num. And at last again, num is equal to num plus 2. 2 क्यों है? क्योंकि ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पे फॉर लूप मुझे बता रहा है. 2 कितना बढ़ रहा है? times. 8 क्यों है? क्योंकि मुझे फॉर लूप बता रहा है. 2 क्यों है स्टार्ट में? क्योंकि फॉर लूप बता रहा है. और num ही क्यों है? बिकॉज it is this one. Why I am writing print num here? Because this is what it is telling. So this would be my answer. How many were right? अच्छा, कौन कहाँ गड़बड़ कर रहा था ये पता चल गया? जिसका भी गड़बड़ हुआ है. Yes, Yes, sir. sir. ओके. Yes, Equal sir. ले लिया था 8. हाँ, इक्वल टू ले लिया था. अब समझ में आया कि क्यों इक्वल टू गलत. हाँ, बीच में कोई सर चिल्ला रहा था. क्या प्रॉब्लम है? टेल मी नाउ. यस. अरे Sir, last line में confusion है. लास्ट लाइन पे ये num इज इक्वल टू num प्लस 2 पे. Yes, sir. सी बेटा, while लूप का ये देखो ऊपर में जो मैंने लिखा है, while लूप की रिक्वायरमेंट ही होती है कि यू हैव टू मेंशन द इंक्रीमेंट इनसाइड द लूप. कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है वो while लूप का लास्ट स्टेप रहता है. ये हमेशा जरूरी है देना.
एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। नम कितना बढ़ रहा है ये हम अपने वाइल लूप के आखिरी में बता रहे हैं। आज बहुत लोग मीटिंग से बार बार वो हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम। सर एक बार आउटपुट बताइए ना। आउटपुट रन करके दिखाऊं? यस सर। ओके चलो रुक जाओ, लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स। लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट चाहिए तुम्हें? तो मैं ऊपर के यस सर नंबर। हाँ जस्ट अ मोमेंट, मैं पहले ऊपर के सारे प्रोग्राम, ऊपर के 3 लाइन को स्टेटमेंट बना देता हूँ ताकि वो जबरदस्ती रन ना हो। ऑलराइट, सो नाउ दिस विल ओनली रन। लेट मी सेव इट, लेट मी रन इट। क्या दिख रहा है आउटपुट? ये रहा, ठीक है? यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। so I think this one is clear to everyone, converting a for loop into a while loop. No problem in this one. यस सर। ठीक, just a moment. Now for the time being I'll take the attendance.